The prime focus is to work on solutions, working solutions through which we can all benefit, and we can probably work in a positive way so as to make our future generations well aware of the laws, and maybe we can come up with some positive reforms through which change can be brought. The prime concept of cross-edge, it all started off almost 4 or 5 years back in 2021, even though I had envisaged the concept way back in 2010, that there is a dearth of such organizations which work in a focused manner on coming up with solutions in different laws. Because Pakistan is going through, in the past as well, we've been going through a lot of difficulties, and our legal infrastructure has completely collapsed in the past few years. A lot can be said, a lot can be talked about, but I think the only way forward left for us is to work together for workable solutions. So this session is a continuation of a lot of efforts. We have been talking about other areas as well, like consumer law, like rights of the minorities, issues of international law, and these are the focused areas on which we have been working. I would like to especially thank the law firm Hassan Hassan, in which I'm also a partner, and my colleague Asad Ghani, who has been instrumental in making all these things happen over here. And special thanks goes to him and the entire team of our law firm, CKR Zia and Hassan Hassan. We are now over here, we are two law firms which have joined hands. We are now Hassan Hassan and CKR Zia, and we have all our associates over here. Thank you all of you for spending time and being part of here. I would specially thank our esteemed guests. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोग तशरीफ़ लाए सेशन के लिए. आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होता है अपने कीमती वक्त में से टाइम निकालना, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा. हम जल्दी से अपने सेशन का आगाज़ करेंगे. ख़ास तौर पे नवीद साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपनी कीमती वक्त से टाइम निकाला. आज भी इनका बहुत ही हेक्टिक डे था हाई कोर्ट में, और आगे भी दिनों में होता है, लेकिन आई थिंक कि आप जैसे अच्छे लोगों की काविश होती है कि हम मिलजुल के कुछ सीख लेते हैं. आज का सेशन फोकस करेगा इनकी वर्किंग पे, वो मिसकंसेप्शंस अबाउट दी वर्किंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को वो डिस्पेल करेंगे, और क्रिटिकली हम एवेल्युएट करेंगे रोल को, और प्रॉब्ली वी विल कम अप विद गुड सॉल्यूशंस फॉर द फ्यूचर. सर थैंक यू वेरी मच. और असद आप कंक्लूड करेंगे सेशन को. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम जी. आई एम नवीद उमर भट्टी, working as a Deputy Prosecutor General in the High Court and Supreme Court of Pakistan. I would like to discuss with you that what is criminal justice system, because then we can, as I have been told, it's a series of lectures varies from department to department. So criminal justice system of any country, including Pakistan, in civilized countries, is a set of laws, traditions, principles, and the main purpose of any criminal justice system is to uphold the rule of law, balance, equality in society, and for the implementation of the fundamental rights. Any country of the world, the civilized countries and even the advanced countries, progressive countries, they are known by their legal system, because a legal system is a root of any kind of life. Whether it is a misconception that law relates only to law, it is based on economy. Before commencing my discourse with you, I would like to refer, because I am saying that the young ones of this profession, although the knowledge never ends, the Holy Prophet, peace be upon him, said, seek knowledge from the cradle to the grave, and it's a persistent and it is unceased. There is a very famous book, even I think even for the senior, even for the bench and bar, is Access to Justice by Justice Fazal Karim. Many people of you may have read it many times, but perhaps if you would open this book, you would see the preface, and that is very interesting. Perhaps I asked that question from many persons who said that we have read it for 10 times, 20 times, 30 times, because it is very short, very comprehensive book, and sometimes I really wonder that what personality His Lordship Justice Fazal Karim was.
his son, or Justice Shahid Karim, is in bench of the Lahore High Court, Lahore. The preface is very interesting. He mentions that decades ago, a British company wanted to open a soap factory in Pakistan. For the young ones, you may take that book. I hope that that book would have been in your library, and you may read the first page again. And the person who came from UK to Pakistan, he requested to the government that he wanted to meet the Chief Justice. The request was imparted to the Chief Justice, and it was very ridiculous for Chief Justice that what the hell is that, they want to open a soap factory in Pakistan. I'm not narrating you a story, I'm telling you a preface of a book which is known for every legal mind, and I would request that if someone has, young ones have not read that, at least read 1, 2, 3 pages. The Chief Justice refused that how is possible that I would meet a representative of a soap factory? Ask him first, what is your purpose? And when the purpose was imparted to Chief Justice and the meeting was convened and it was surfaced, that he said that, sir, we want to commence a business program in Pakistan, but without solid legal system and without your consensus, we would not invest. I look at the point that a soap factory from UK, because they know that if some havoc happens, there is a legal system. And sorry to say, that is the reason in the developing countries that the investment never happens. The foreigners are very choosy and they first prefer their interests. So why I have narrated that the law, the legal system, the balanced legal system, if in any country, is a gateway for the foreigners, for the inhabitants to spend a good life and to have investment in that country and to stay there. So criminal justice system, is a set of laws, principles. One thing is more, then I would come, because actually when we want to discuss a prosecution role, first of all we will have to see that what is criminal justice system. So it is clear that it is a set of laws, rules, principles, even the traditions which make a criminal justice system. As we know that Pakistan, the constitution of any country is a gospel. After the gospel books, the constitution of any country is the most preferred book, and the constitution of Pakistan is based upon the principle is the trichotomy of power. So what is trichotomy of power? Executive, legislature and judiciary, and they would have to remain in their own ambits and work as a team for the benefit of the people and country. As far as our criminal system is concerned, we have a British inherited system. All of you are, mashallah, well versed with laws, with education, and you are really the one of the blessings of society, the educated people. So we have a British inherited law that is called actually a colonial law, because we were, the Great Britain had in his 57 countries were there as a colony of the UK. Of subcontinent, the United India was one of them. So as far as the criminal justice system is concerned, the Criminal Procedure Code, the Pakistan Penal Code, and even Qanun-e-Shahadat Ordinance 1984 was amended to the much extent, but even all these are the three basics book, and then we have a different laws than the anti-terrorism. For anti-terrorism we have to see the Anti-Terrorism Act. For narcotics we have to CNSA. For NAB we have the NAB Act. So there are different branches, but the main procedure is the Criminal Procedure Code, and main penal code is the Pakistan
Penal Code. So, as far as the criminal justice system, we will precise our discourse to Pakistan. So now we will see that in all other countries, like it consists of judiciary, police, prosecution, and now we have a decade back the prison department was not on the surface, but now we have attended many seminars even from in different countries in Pakistan, because it is when a convict is sentenced, then it is sent to the prison. So even an under trial prisoner is in a prison, so they are also the part of a criminal justice system. So these are the four, and we will not touch here judiciary and police and prison, but we will maximize our discussion, my discussion on prosecution, but in references where we will touch all these, because this is a teamwork. So now I think that way back there was no coordination between them, and in the last year in September the US Embassy held a seminar in Islamabad and in Murray, and I was part of them, and all the four departments were invited there, some of their representatives, and now even on online integration has been made. A lot of things that judicial integration of with the police, with prosecution, and with the prison department. Now coming to the Punjab Public Prosecution, I hope, is it okay for the young ones what I have narrated before you? Now, what is the prosecution? Actually, the prosecution now we call, if you appear in the district courts and sessions courts, in High Court and Supreme Court, we call, suppose ABC versus state or ABC versus Sarkar. When any criminal offence is committed, then it is not committed against an individual, it is committed against state. So that is why the main, in High Court we many times, even in compoundable offences, I would refer if you will need the judgments, even in the compoundable offences, the state is a stakeholder, and we see that what is going on, right or wrong. So prosecution department, as far as this act is concerned, that act was promulgated in 2006. It was Asian Bank and many other foreign institutions supported that, and it was a very good thing, and the motive was that to promulgate an act which develops an independent prosecution, because before 2006 the prosecution was merged with the police. The police department has their own legal inspectors, DSPs, deputy superintendent of police, legals, and superintendent of, so there was their own hierarchy. So after 2006 the main aim in the legislature's mind was to establish an independent prosecution service which is not dominated by the executive, and although it works under the executive, but their main aim is the dispensation of justice, and not that they are all the time under the government's orders. So that after 2006 till 2006-7 until 2009-10, the induction in this department was at the pleasure of the government. Subsequently, His Lordship Justice Iftikhar Hussain Chaudhary, Chief Justice of Pakistan, 1-2 matters went there, and His Lordship Justice Ramdev was there, and they said that because in the Act it is written that all the induction will be made from the Punjab Public Service Commission. So after that, from 2009 and 10, now the induction in this department is through Punjab Public Service Commission, and these days 5 to 6, even an assistant district public prosecutors
6 papers are held by the Punjab Public Service Commission, and there is a process and there is a channel. So establishment now, as far as the Act is concerned, before discussing their working, the Prosecutor General Punjab is the head of the service, and he is supported by in the superior courts like High Courts, Supreme Court and Federal Shariat Court, and now the Constitutional Court, by the Additional Prosecutor Generals and the Deputy Prosecutor Generals. They are also inducted through Public Service Commission, except the Prosecutor General Punjab, who is appointed as the pleasure of the government, and all other. We are now regular at this time 30 to 31 additional prosecutors and deputy prosecutor generals in the whole Punjab. They are working in Supreme Court of Pakistan and principal seat of High Court and 3 other benches. As far as the district, to understand the matter, as far as the district cadre is concerned, the sessions court, the additional session judge, the session judge and the magisterial courts, there are 3: the district public prosecutor, the deputy district public prosecutor and the assistant district public prosecutor. Normally the assistant district public prosecutor is meant for working to the court of the magistrates. The deputy district public prosecutor normally works, if there is no dearth of prosecutors, in the courts of additional sessions judges, and the district public prosecutor is supposed to work with the sessions judge. जो नई डेवलपमेंट हुई है, there is integration of judiciary, prosecution and police. The moment an FIR is registered, तो जो डिस्ट्रिक्ट का प्रोसिक्यूटर होता है वो अपने लॉग इन से देख सकता है कि मेरे थाने के अंदर एक नई FIR आ गई है. सेम अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो वो देख सकता है, पुलिस वाला भी देख सकता है कि जो मैंने चालान जमा कराया था, उस जो इंटीग्रेशन हुई है उसके अंदर 2 PWs हो गए हैं. 6 तारीख पिछली थी, अब अगली 8 तारीख है. तो ये लोगों के लिए जो है ये एक बहुत ज्यादा. और अब तो प्रिजन को भी एक्सेस दे दी गई है कि प्रिजन को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है हम उनको पहले ही 8 दिन पहले बता, अब जो न्यू वीक शुरू होना है मंडे से इंशाल्लाह, तो उसके लिए उनको लेटर्स चले गए हैं कि जो जो अपील्स लगी हुई हैं, जो आपके पास उन सर्व्ड अनसर्व्ड एक रिपोर्ट होती है. आप में से अगर कोई क्रिमिनल लॉ, आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू जो है वो क्रिमिनल लॉज को नहीं डील करते हैं एंड कॉर्पोरेट लॉ को डील करते हैं, तो दिस इज अ डिफरेंट मैटर. तो एक सर्व्ड अनसर्व्ड रिपोर्ट मांगते हैं हम नीचे से कि कितने इसने गुजार लिए दिन और कितने साल इसके रह गए हैं कितने, तो वो फिर जेल, अब वो भी. और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो इसी तरह हम जो है अपील्स जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सपोज हम हाई कोर्ट से शुरू करें तो हाई कोर्ट के अंदर 100% जो वर्क है उसमें 95% वर्क तो प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस करता है. द एडवोकेट जनरल ऑफिस ओनली कंडक्ट्स रिट्स. क्रिमिनल रिट भी वो नहीं करते, क्रिमिनल रिट भी वही करते हैं. बेल्स, सस्पेंशंस, अपील्स, MRs सब हम करते हैं. और अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो सिर्फ जहां पे फेडरेशन पार्टी हो, किसी ने अगर नादरा के खिलाफ रिट कर दी तो फेडरेशन को बना तो वो वहां पे करते. इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब के प्रोसिक्यूटर अपने हैं, KPK के अपने हैं, सिंध के अपने. एंड लास्टली बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, व्हाई दैट डिपार्टमेंट इज नॉट ऑन द सरफेस. यू नो, हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन वो लोगों की, उसकी एक वजह ये है कि दिस डिपार्टमेंट हैज बिकम अ ब्रेन ड्रेन. Abhi in the last week a result of additional sessions judges was announced and 16 prosecutors have qualified because वो अगर 25 क्वालिफाई करते हैं, 16, 18, 20 हमारे डिपार्टमेंट से होते हैं, बिकॉज वो काम भी करते हैं. पब्लिक सर्विस कमीशन से इंग्लिश का पेपर भी पास करके आए हैं जो बड़ा जरूरी है, विच इज द बेसिक वीकनेस ऑफ पाकिस्तान, कि वो एक जो पेपर है वो बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी पास करके आए हैं. तो वो काम भी करते हैं. तो कोई बैच ऐसा नहीं जिसमें सिविल जजेस में जो यंग असिस्टेंट वो, तो आई एम सेइंग कि इसकी इतनी, वो 2-4 साल इधर से काम सीखता है, वो चलान चेक करता है, वो ट्रायल करता है, वो और फिर वो से गुड बाय, वो
एडिशनल सेशन जज हो जाता है या असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट सिविल जज हो जाता है या किसी, अब तो और आगे अब वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाना. द रीजन इज दैट द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस. द एडवोकेट जनरल, द असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, द एडिशनल एडवोकेट जनरल हु कंडक्ट 2 केसेस, और एक डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के पास 10 MRs हैं, 10 MRs. उन 10 MRs में हो सकता है 30 मिलियन फीस मुख्तलिफ वकला ने ली हो. और जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है जिससे अभी 5-6 साल प्रैक्टिस की है लेकिन वो किसी अच्छी उसकी है नाउ हाउ, तो ही इज टेकिंग 5,40,000. द एडिशनल एडवोकेट जनरल इज टेकिंग 6,40,000. और वो कर, आप देखेंगे जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो एक रिट करने आते हैं और उसके बाद 9:35 पे 9:25 पे चले जाते हैं. द अटॉर्नी जनरल ऑफिस, दे आर मोर ब्लेस्ड, दे कैन टेक देयर ओन प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली. सिर्फ फेडरेशन के खिलाफ पेश नहीं होना और वो पैसे उनको भी 2 लाख. आई एम एट द सीनियर हायरार्की ऑफ द प्रोसिक्यूशन. तो मेरे, अब आप जो एक बच्चा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर आता है उसको 1,25,30,000 रुपया मिलता है और उसको पोस्ट किया जाता है इन अनदर डिस्ट्रिक्ट. दिस इज हेल ऑफ, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी ज्यादा नहीं होगी कि हाईकोर्ट का जज टर्नर रोड पे, हमें तो सारा दिन हाईकोर्ट सुप्रीम, हाईकोर्ट का जज सामने टर्नर रोड पे उसका ऑफिस है. आफ्टर एलिवेशन 250 मीटर पे वो एमआर डिसाइड कर रहा है. और एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर वो एक एएसआई से ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, वो बड़े से बड़े बंदे को बेगुनाह कर दे, बेल वापस ले लेते. वो मोहम्मद बूटा जो मैट्रिक पास है और वो जो पीपीएससी करके आया है उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि यू कैन नॉट बी पोस्टेड इन योर डिस्ट्रिक्ट्स. वो 1,30,000 में 4 बसें बदलता है और लाहौर से वो जाता है ननकाने, वो जाता है फैसलाबाद. और ब्रेन ड्रेन की वजह से, और इवन द सिस्टम इज सेम इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, कि इतना काम करके भी we are paid very less as compared to this. So this is, or as lastly, now the department is working. The main example, if you want to take, is that because we are not in media, but you may ask the question from the litigants. आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पूछें क्यों करें जी वकील करना है, तो कहते जी नहीं मैं नहीं करता. ठीक है जी सरकारी वकील साहब करेंगे, तो वो एमआर के नहीं पैसे देते और वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं. तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाके देखें तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो प्रोसिक्यूटर्स वर्क करते हैं. तो आई थिंक दैट दिस इज अ न्यू डिपार्टमेंट, बट इन द मीन टाइम इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर नाउ यू मेट आस्क द क्वेश्चंस. Thank you so much, Naveen sir. Sorry for the because of the possible Yes. सब नहीं करना है. Yes. मेरा ख्याल है the house is now open because थोड़ा सा हम लोग will take 10-15 minutes for good questions. उसी से हमारी interesting debate होगी and house is open for questions. मैं एज ए लायक यहाँ जन बैठे हैं, बड़े कम लोगों को पता है कि इन पर्सन पेश होना. और मुझे एजाज़ है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी फुल बेंच में ड्रग्स के केस में इन पर्सन पेश हुआ और 1.5 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेंच की मावनत की. उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में. मैं 2 क्लैरिफिकेशन आपसे चाहता हूँ. नजरिया ज़रूरत, जिसको हम अक्सर पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, मैंने पब्लिक लिटिगेशन केस में देखा है कि जज जो है जो फैसला करता है वो लॉ के मुताबिक नहीं करता. वो नजरिया ज़रूरत जो उस वक्त ज़रूरत होती है उसके मुताबिक अपनी जो अपने ऑर्डर जो है पास करके डिपार्टमेंट को भेजता है और डिपार्टमेंट उस पर अमल करता है. तो क्या इसकी वजह, ये क्या वजह है कि वहाँ नजरिया ज़रूरत अप्लाई होता है पब्लिक लिटिगेशन केस में, और दूसरा जो लॉ है वो उसको किस तरह प्रोटेक्ट करता है? थैंक यू. ठीक है. अच्छा ठीक. देखिए, as it is a non-political discussion and it's a forum, unfortunately what the question is that question is very deep. Right from ये तो जो एक मौलवी तमीजुद्दीन केस है जहाँ से हमारा मुल्क का शुरू हुआ सिस्टम के एक गवर्नर जनरल है गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, तब सुप्रीम कोर्ट नहीं थी होती, फेडरल कोर्ट होती थी, तो उसने कहा कि ये डिसॉल्व करता हूं मैं. तो वो उस केस से, और जो था उस वक्त के फेडरल कोर्ट ने, उन्होंने गवर्नमेंट की जो जिसको डिसॉल्व किया उसकी बात नहीं सुनी, और ये फिर सीरीज ऑफ केसेस हैं टिल नाउ. ये जो लॉ ऑफ नेसेसिटी हमने जो देखें, हम उस दिन भी हंस रहे थे
आई वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन CPD फॉर सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जिन्होंने इसको डेवलप किया था शायद वो भी इसको इस तरह से नहीं रखना चाहते थे। लॉज ऑफ नेसेसिटीज होते हैं मुल्क के लिए, मुल्कों के स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके अंदर। अब देखें ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं 8 सेक्शन 7 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। और फंडामेंटल राइट्स तो एक ऐसी चीज है कि वो कभी भी उनको जो है आप ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये नेसेसिटी को देखते हुए कि हाँ कई दफा गवर्नमेंट को जरूरत पड़ सकती है कि वो कहीं भी मॉब इकट्ठा ना हो, तो उन्होंने आर्टिकल 232 और 233 कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिए कि ये जो है ना आर्टिकल 16, 17, ठीक है, राइट ऑफ स्पीच, ठीक है जी, ये 16, 17, 18, 19, 20 उन्होंने कहा हम इसको शॉर्ट टाइम के लिए आर्टिकल 2 इमरजेंसी, लेकिन उसका टाइटल है 231 से वो है इमरजेंसी प्रोविजंस, वो इमरजेंसी है और इमरजेंसी को आप डिफाइन में क्या डिफाइन करूं तो वो हो सकता है। लेकिन जो इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि आई बिलीव वर्किंग इन द सुपीरियर कोर्ट्स, तो ये जो लॉ ऑफ नेसेसिटी है ये बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस के वक्त होना चाहिए जहां पे सिर्फ मुल्क का बेनिफिट हो और जहां पे हम देखें कि खुदा ना खास्ता हम इसको अगर एक्सरसाइज ना किया तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा, वरना ये पर्सन टू पर्सन और पार्टी टू पार्टी और इंडिविजुअलिज्म पे और ये होता है। और ये बिल्कुल आपने तो अब है, अगर आप मौलवी तमीजुद्दीन से देख लेंगे तो ये तब से ही है और ये वी मे प्रे के जो है वो Basically, I was appearing in an appeal. उसमें हुआ ये था कि husband was accused of murder of his own wife. Yes. But उसकी plea ये थी कि he was not there. He had his plea of alibi. But जो आयो साहब थे उन्होंने investigate ही नहीं किया about his presence कि वो मौके पर था या कहीं और जहाँ वो allege कर रहा है वहाँ पर। तो अमजद रफीक साहब जस्टिस के पास मेरा केस था, but he refused that appeal. उन्होंने नहीं वो अपील एक्सेप्ट की from the accused side. उन्होंने कहा डिसमिस कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब जहाँ पर इस तरह हो तो there should be some burden on husband also to justify कि why he remained silent. लेकिन अब जब बीवी का कत्ल हो गया और बीवी के घर वाले पीछे पड़ गए आपको जस्ट पकड़ाने के लिए, तो how और and why कैसे इससे सपोज किया जा सकता है? मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जजमेंट, ऑल्दो इट्स अगेंस्ट मी बट नॉट you were appearing as लॉ की बात कर रही हूं। well, you were appearing as an appellant. Sorry? Appellant for Yeah, I was an appellant on that case, but the problem is that it is a prosecution who has to prove his case. sorry? Why the burden was put on the accused? Yes. Where was he? Why he couldn't produce his evidence? Yes, GGC. I response that. और हालांकि इससे पहले वाले अपील्स में आई हैव लाइक एक्सपीरियंस जिसके ही हैड गिवन वंडरफुल जजमेंट्स, बट ये उन्होंने रिपोर्ट भी किया, एक तो डिसमिस की ऊपर से रिपोर्ट भी कर दी। चले मैं आपको बताता हूँ। आप आगे कह रहे हैं आप जुडिशियल ऑफिसर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो I would refer article 122 of the QSO. एक आर्टिकल है 122 ऑफ QSO, द नॉलेज, वहां पे जो पहली मिसाल लिखी हुई है ना, द फर्स्ट एग्जांपल इज आर्टिकल 122 ऑफ कानून शरारत ऑर्डर। उसके अंदर लिखा हुआ है कि पर्सन हु इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, the burden whether he bought the ticket or not is on him because it is his exclusive knowledge. अगर मैं पकड़ा जाता हूँ लाहौर स्टेशन से, वो कहते हैं नहीं तो मैंने उनको बताना है कि मैंने टिकट खरीदी थी। तो जो ये जो लॉ है ना, देखिए मैं भी ये 2020 का CMR पेज 69 है। आज भी मैं बता रहा था सर को कि मैंने उनको व्यू चेंज किया और मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं बेंचेस के व्यू चेंज करता हूं। देखें इंडिया, वो नो डाउट वो हमारा दे आर perennial four, they are much ahead us. इंडिया के अंदर आर्टिकल 122 अभी भी इन्वोक किया जाता है। A husband in whose house, we are not taking whether you appeared for appellant or for the complainant, it's not a matter, it's a matter of law. Okay, females, the women, they children, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर जजमेंट दिया। मैंने अब जजेस के व्यू चेंज होना। देखें इंडिया आर्टिकल 122 को हमने, ये पहली 80s में जजमेंट यही थी 122, हस्बैंड बताएगा अगर उसके घर में बीवी मरी है और वो कहता है जी मैं एक कमरे में था दूसरे कमरे में देखा तो उसको फायर लगा हुआ था। आर्टिकल 122 इंडिया फुली इंप्लाई करा, हम भी 80s तक करते नहीं। ये तो जब हमने ब्लाइंडली फॉलो शुरू कर दिया ना, हिज लॉर्डशिप जस्टिस खोसा साहब ने, वो बिल्कुल ही ब्रिटिश को टिल्ट कर गए, क्योंकि उन्होंने सेशंस कोर्ट में कभी गर्मी में कोट पहन के गए नहीं, वो कभी गांव में गए नहीं थे, उनको हम पैराशूट जजेस कहते हैं,
उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि किस तरह औरतों को लोग रोटी देर से पकाने पे डंडे मारते हैं। तो आर्टिकल 122 कहता है कि अगर एक हस्बैंड के घर में, वो एक्सप्लेन करेगा अगर उसने नहीं मारी तो किसने मारी। तो नो डाउट कि जो देखे ना, अगर आप पढ़ना शुरू करें एज ए जुडिशियल ऑफिसर, आपने देखा कि आर्टिकल 117, 118, 119, 121, 121, 122 एक सीरीज है कि पहले ऑनस जो है वो प्रोसिक्यूशन पे है, बट देयर इज व्हेन द ऑनस शिफ्ट्स, दो जगहों पे ऑनस शिफ्ट होता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। एक तब ऑनस शिफ्ट हो जाता है जब कोई भी अक्यूज ही सेज इट टेक्स द प्ली, आई एम अनसाउंड माइंड, 84 मुझे कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अनसाउंड माइंड। जी, May I add one thing? यस यस With your permission. यस यस ये बात जरा कंप्लीट होने देते फिर आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आप- इसी में ऐड कर रहा था। अच्छा चलिए मैं ठीक इसी की दो एक्सेप्शन बताने लगा था। जी ठीक है जी ठीक है। अब 82 और 83 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड हु इज एज अंडर द एज ऑफ 12 इयर्स ओल्ड। तो एक एफआईआर होती है और वो आके कहता है बच्चा कि वो कहता है जी जनाब मैं तो 11 साल का था, 9 साल का था, 8 साल का था। और ये भी एक्सेप्शंस का मतलब ये नहीं होता लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, कि एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर होगी, फिर उसने ड्यूरिंग ट्रायल और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने कहना कि मैं तो जनरल एक्सेप्शन में मेरा केस है। तो वो कहता है कि भाई मुझे तो लॉ कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस। अब ऑनस उसके ऊपर शिफ्ट हो गया। अब उसने साबित करना है, अगर वो कहता है मैं अनसाउंड माइंड हूं, ये आज एक केस है और मैं आज के आपको बताऊं बिकॉज प्रैक्टिकल वर्क बड़ा मजेदार। हम जितना थक जाते हैं ना जब हम एक अच्छा काम करते हैं या कोई किसी को चाहे, और मुलजम बेगुनाह को छुड़वाना भी बड़ा अच्छा काम है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ऐसे नहीं होती। हम तो बिल्कुल कई दफा कंप्लेंट हमसे इतना नाराज होता है वो जो है। तो उसके अंदर एक बच्ची ने, आज की बात, शी वाज अ शिजोफ्रेनिक पेशेंट, फीमेल, हाफिजाबाद का केस था ये मैं, तो उसने वो उसकी जब मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो वो तो सीवियर शिजोफ्रेनिक पेशेंट थी। और तो शिजोफ्रेनिया जब एडवांस स्टेज पे जाता है तो आप उससे उस फिट के दौरान वो अपने आप को भी मार सकता है। वो इस लेवल पे चली गई थी। इंडिया ने इसके ऊपर बहुत अच्छी जजमेंट दी। फिर हमारी PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 488 जजमेंट है। वो अगर कोई समझना चाहे कि जो शिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं या जो मेंटल डिसऑर्डर के लोग होते हैं उनका ऑफेंस होता है क्या, तो उसने अपनी बच्ची को चारा काटने वाली मशीन के अंदर दे दिया। 2.5 साल की बच्ची थी, उसकी टांगे कट गई और वो जो थी वो जरी बात है एक्सपायर हो गई। तो मैंने उसको जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने, वो तो जारी बात है जुल्म हुआ है, तो मैंने फिर उसके अगले 35 डॉक्यूमेंट भी देखे कि ये तो 6-7 साल से सीवियर शिजोफ्रेनिक थी। तो ये अब जब ट्रायल होगा उसका, अभी वही सर, तो अब ये ऑनर्स जो है वो प्रोसिक्यूशन को, वो डॉक्यूमेंट भी प्रोसिक्यूशन को डिस्पेल करने हैं कि अगर वो शिजोफ्रेनिक पेशेंट थी और अगर उसकी आ जाता है डिफेंस में, वो डॉक्टर आ जाता है जहां पे वो शिजोफ्रेनिक वो इलाज पे रही थी, और वो आ जाता है कि ड्यूरिंग फिट इनको ये भी नहीं पता चलता कि वो अपने आप को भी मार सकती है। तो यहाँ पे ये चेंज जो सेम हैपेंस विद द हस्बैंड। ये इंडिया के अभी काजी अमीन साहब ने 2020 SCMR 69 जजमेंट दी, बड़ी खूब। हालांकि वो डिवीजन बेंच में कहता था, मैंने वो एक औरत को उसके हस्बैंड ने मारा, और ये आप देखें हम हाईकोर्ट में रोज देखते हैं 98 पॉइंट वो क्विट हो जाते हैं। ये द फीमेल्स आर नॉट द एनिमल्स कि वो एक बाप उनको दे और वो माँ, और गांवों के अंदर तो इतना ट्रेडिशन है। तो ये जो है मैं भी इस फेवर में हूं कि 2020 SCMR 69 काजी अमीन साहब ने कहा था इन्वोक करें वो जुरिस्डिक्शन और आर्टिकल 122 इससे पूछें, हाँ वो अलीबाई साबित करे, वो कहे कि जब अक्रंस हुआ था, द अक्रंस was committed in Lahore and I was at that time in Shekhupura and I was in the factory ICI. You may take my attendance sheets, my biometric. तो फिर टिल्ट प्रोसिक्यूशन पे, अगर उसकी आलिबाई आ जाती है, अब प्रोसिक्यूशन ने उसको डिस्पेल करना है कि भाई जो इसने वहां से प्रोसिक्यूशन जो उसने अटेंडेंस शीट ली है, जो बायोमेट्रिक ली है, वो फेक है। तो टू माय माइंड दैट वाज द राइट डिसीजन। विद योर परमिशन मैं सिर्फ इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा था। जी जी, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है बेसिकली इट इज ऑलवेज अपॉन प्रोसिक्यूशन, Yes. बट देयर आर 2 एक्सेप्शन टू दिस रूल। यस, पहली है प्ली ऑफ एलिबाई जो उन्होंने एक्सप्लेन कर दी, दूसरी है सेल्फ डिफेंस सेक्शन 100 कि जब मैं ये प्ली लूंगा कि अगर मैं गोली ना चलाता तो अगले ही लम्हे मुझे मार दिया जाता, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है।
फिर मैंने ये प्रूव करना है कि वो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आई वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू फायर। तो उस सूरत में ये दो एक्सेप्शंस जो हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से, जो पहली बात उन्होंने एक्सप्लेन कर दी कि जहां पे प्ली ऑफ एलिबाई आएगा, वो हस्बैंड है जो भी है उसको प्रूव करना लाजमी है, वो खुद उसको प्रूव करेगा, प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा। एंड सेकेंडली, इफ आई एम टेकिंग लॉ इनटू माय हैंड्स और मैं उसको जो है वो मार रहा हूं सेक्शन 100 के अंदर, तो वहां पे फिर मुझे प्रूव करना है, वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर और ये सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का ना हारिस साहब, आप इस क्वेश्चन हम सब एक्सपर्ट्स हैं। ये डॉक्टर मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मैं देखता हूँ। देखिए, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मुझसे बहुत बेहतर नवीद साहब समझते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिशनर भी हैं और वो डेली बेसिस इन इश्यूज को देख रहे होते हैं। हमारा जो इस पे जो मैं अगर टू फ्रॉम माय साइड जो आते हैं वो ये थे कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हमेशा ये चीज़ आती है कि बर्डन किधर और कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में शिफ्ट करता है। अजीम ने बड़ी अच्छी तरीके से उसकी एक एंगल को एक्सप्लेन किया। इसमें मैं एक छोटी सी और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कई दफ़ा स्टैट्यूटरी डिफेंसेस जो होती हैं एक्यूज के लिए, वो भी कैसे डेवलप हो जाती हैं। एक बड़ा मशहूर केस है जो कि हम लोग जब अपनी क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई करते थे तो उसमें पढ़ाया गया था, आर वर्सेस अहलुवालिया। जिन्होंने एक्सटर्नल लॉ किया हुआ उनको सबको याद होगा ये, ठीक है। उसके अंदर पहली दफ़ा एक खातून ने एक अपने हस्बैंड को, उसकी एक डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री थी, उसने मार खाने के कुछ 4 घंटे के बाद उस पर तेल छिड़क के उसको बेड पे आग लगा दी और वो वही ख़त्म हो गया। अब स्टैट्यूटरी डिफेंसेस में एक प्रोवोकेशन का कॉन्सेप्ट आया और उसके अंदर वो फेल कर गया, क्योंकि प्रोवोकेशन हैज़ टू बी इमीडिएट एंड सडन, ठीक है। उसके बाद डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आया, वो भी फेल कर गया और इवेंचुअली उसे कन्विक्शन हो गई। अब इवेंचुअली वो जेल में चली गई खातून। और ये खातून कौन थी? ये एक सेटल्ड ब्रिटिश फैमिली ने एक बहुत ही बेसिस एक सादी गांव की एक सिखनी लड़की को वो ब्याह के ले आए। अब वो उसके लिए टोटली नया जगह थी, सब कुछ था, और वो शी वॉज नॉट सब्सक्राइबिंग टू देयर न्यू जो वहाँ का एक तौर तरीके थे। अब इवेंचुअली ये कोर्ट ऑफ अपील के अंदर, सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोर्ट ऑफ अपील में अपील गई तो एक क्यूसी साहब ने, बड़े सीनियर क्यूसी ने वहाँ पे आर्ग्यू किया और ये उनके सोलिसिटर्स ने दे केम अप विद दिस आइडिया कि एट द टाइम ऑफ द ट्रायल द कंसर्न्ड जो लॉयर था, ही फेल्ड टू, द जज failed to give the direction to the jury कि she was suffering from a mental situation where she was being battered for more than 10 years. And then the Court of Appeal came up with a new defense which was called a battered woman syndrome, कि एक खातून जिसको हैबिचुअल मार खाने की आदत है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं सोच सकती, लिहाजा उसका वो एक्ट जो था वो एक नई स्टैट्यूटरी डिफेंस रिकग्नाइज की गई और उसमें लाया गया। सो इसी तरह की एक्सेप्शन जो है बर्डन ऑफ प्रूफ की, जिस तरह नवीद साहब ने फरमाया कि ये बात दुरुस्त है कि वो जाता ही प्रोसिक्यूशन की तरफ है और उनको प्रूफ करना है, लेकिन ये चीज़ भी एंगल लॉ ने रिकग्नाइज की कि जहाँ सिचुएशनल और कंडीशनल ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे इन्होंने फरमाया कि हमारे यहाँ पे औरतों की ट्रीटमेंट किस किस्म की रही है और जिस किस्म के जुल्म या सिचुएशन में वो रही है, तो उसमें इस तरह की एक्सेप्शन क्रिएट करना जहाँ बर्डन हस्बैंड पे डाल दिया जाए बिकॉज ऑफ द सिचुएशनल, एक पूरा एक कहने की एक हवा कैसी होती है, क्योंकि इन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, यूके और उनकी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर चीज़ें पैरिटी पे किसी हद तक चलती हैं, वहाँ पे मर्द और औरत की बराबरी है। पर पाकिस्तान की लीगल सिस्टम में ये वाली साइड उनकी बड़ी ज़बरदस्त है कि वो अप्रिशिएट ही नहीं की गई कि किस हालात में, किस सिचुएशन में वो रहा। सो ये ओपन टू डिबेट है, इस पर हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, हम आगे भी जा सकते हैं। मैं इसको, क्योंकि हम ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसका एक सेशन पार्ट भी रखेंगे, लेकिन वी आर प्रेस्ड फॉर टाइम बिकॉज सब ने अपने अपने घरों में जाना है। तो मैं ये आप स्पेशल लॉस पे बताया ना, नैप वगैरह में ये बर्डन ऑफ प्रूफ, मैं ऐसा आपकी तरफ आ रहा था। it will be presumed that the accused has committed an offense. अब onus उसके ऊपर है कि, लेकिन उसके this is today even I was the Supreme Court of Pakistan interpreting these laws, even ATA, NAB and CNSA. अब CNSA के अंदर जितनी सख्त सजाएं कर दी गई हैं कि 9C के ऊपर कर दी गई not less than 9 years. अब जज ने उसको या सजा देनी है या 9 साल से कम सजा, एंड वी नो कि वो सारे पर्चे थाने में बैठ के होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आज भी मैं एक बेंच के सामने, डिवीजन बेंच के सामने कह रहा था सर कि द जजमेंट्स विच आर सपोर्टेड बाय द कोडिफाइड एंड स्टैट्यूटरी लॉ, दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल जजमेंट्स। द प्रॉब्लम इज दैट
कि हमारी जो जजमेंट्स, अब देखिए ना एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन आ गई आर्टिकल 29 है CNSA में कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है अक्यूज्ड की। ATA के अंदर 27B है कि भाई उसने, और एक इसी तरह सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट है उसके अंदर है, नैब है कि उसने, प्रिजम्पशन यही है कि इसने किया हुआ है। प्रिजम्पशन इज नॉट इक्वल टू एविडेंस, वो एविडेंस तो नहीं है, लेकिन प्रिजम्पशन इज अ प्रिजम्पशन, आप उसको बिल्कुल जो है ब्रश आउट नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली ATA के ऊपर भी, CNSA के ऊपर भी, ये खोसा साहब ने पहले उसको PLD 2009 लाहौर 362 में उसको कर दिया था कि इतने की इतनी सजा होगी, इतने की इतनी सजा होगी। ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल, लेकिन वो इंटेलेक्चुअलिटी जब वो लेटर आए, जो आपका क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो प्रोविजंस हैं ये अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो आर्टिकल 117 और जो ऑनर्स है वो आपके ऊपर है बेशक। और अच्छा, फिर एक और ये 2021 में जजमेंट आई, उन्होंने कहा कि पहले आप 3 चीजें साबित करेंगे फिर ये आर्टिकल 29 अप्लाई करेगा। फर्स्ट, द प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव द नारकोटिक्स और द सब्सटेंस वाज रिकवर्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल शैडो ऑफ डाउट। तो पहली बात वो तो प्रिंसिपल है ना कि जब आपने उसको क्विट करना है, ये ड्यूरिंग एविडेंस, जब एविडेंस लेते हैं, वो जो प्रिजम्पशन जो है वो प्रिजम्पशन इन्वोक कैसे होगा? वो प्रिजम्पशन ये वो ड्यूरिंग ट्रायल प्रिजम्पशन, ट्रायल जज के जहन में यही है कि भाई इसने, अब अक्यूज्ड ने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए, क्रॉस एग्जामिनेशन द टूल टू सिफ्ट द ग्रेन फ्रॉम द चफ, तो अब उन्होंने कहा कि पहले आप इसके ऊपर सब्सटेंस साबित करेंगे कि ये वो कैसे, रिकवरी मीनू आपने उसे रिकवर किया, उस जगह से रिकवर किया, वो आपके गवाह ठीक थे, एंड देन यू विल हैव टू मेक अ चेन ऑफ कस्टडी ऑफ दैट कि वो IO से कैसे गई मुहर्रर के पास, मुहर्रर से फिर कैसे PFSA में गई। तो योर क्वेश्चन इज गुड, बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर अगर वो पॉलिसी केसेस ना हो, बिकॉज आई एम वॉचिंग दैट फ्रॉम अ डेकेड इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो फिर मोहम्मद बूटा और मोहम्मद इस्माइल का केस पे कोई लीगल प्रिंसिपल नहीं है। ये तो बुकिश तो प्रिंसिपल हैं, लेकिन जो एक्विटल का वो रेशो है वो वैसे ही है। जस्ट टू ऐड, Yes. इसे कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं कि ये सारे जो नई आपने इन्वेंशंस हमने सिस्टम में की हैं, इससे बेसिक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और जो सबस्ट्रेटम ऑफ द लॉ वो चेंज नहीं हो गया, और उससे क्या हम इंतहाई डेंजरस प्रेसिडेंट्स की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? सर, दिस इज एब्सोल्युटली डेंजरस। देखिए ना, आपको एक ना लॉ रिपोर्टेड एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है, मैं अगले दिन पढ़ा रहा था PDD में कि हाई कोर्ट के, अब अगर ये बात लॉर्डशिप को कह रहे हैं तो लॉर्डशिप तो बहुत इस बात का बुरा मना लेंगे। लॉ रिपोर्टेड एक्ट ये कहता है, अभी आप उसको गूगल से निकाल लें, कि जब उसको कहते हैं ब्लू स्लिप। जज साहब देखेंगे ये नया क्वेश्चन आया है, वो नए क्वेश्चन को ब्लू स्लिप लगेगी, उसकी फिर वो परमिट करेंगे और फिर वो रिपोर्ट होगा केस, और वो ये भी देखेंगे कि क्या ये किसी पिछले प्रिंसिपल से कॉन्ट्रा तो नहीं है। अगर कॉन्ट्रा है तो क्या मैं उनसे बड़ा बेंच है मेरा? वो 2 जजेस ने दिया, मैं अकेला जज ये जजमेंट दे रहा हूं और मैं उसको रिपोर्ट भी कर रहा हूं, और वो रिपोर्ट उनका प्रिंसिपल। तो ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि आपको मैं बताऊं कि अब एक जज, एक शुमार, अब 2014 SCMR, ये बड़ा मूट पॉइंट है, छोटे जो बेटे बेटियां, 2014 SCMR 1499, ये उसमें आया कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन व्हेन द ट्रायल कमेंसेस एंड द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी चेंज। और जज साहब ने कहा, अपनी 3 मेंबर बेंच था। उसी मंथ, ये 17 तारीख का फैसला है, 19 तारीख का एक फैसला 2 मेंबर बेंच ने दे दिया। 2014 SCMR 474, उन्होंने कहा कि इट कैन बी चेंज्ड। अब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो वो जैसा क्या हो सकता है, तो अगर वो फिर उनको समझाते हैं कि जी चले नहीं, अगर हो सकता तो 1499 3 मेंबर बेंच है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पॉइंट देखें, और लास्टली ये एक आज भी क्वेश्चन डिवीजन बेंच में से कहा था कि उसने एडमिट कर लिया है, तो 2013 SCMR 383 अजर केस कहता है कि वो अगर कर भी लेता है 342 में, तो फिर क्या है?
हमने इसके ऊपर 40 छोड़े हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र है सर्च करते हुए मैं कहा माय लॉर्ड्स विद योर परमिशन मैं एक चीज ऐड करूंगा। यस, मैं कहा माय लॉर्ड, लॉ हैज डेवलप्ड, लॉ इज नेवर स्टैटिक। आपने पीएलडी 2020 सुप्रीम कोर्ट 201 पढ़ी है, ये तो मैंने कहा माय लॉर्ड 2 पीएलडी तो उन्होंने मंगाए बुक, तो उसमें जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा 342(3) को डिफाइन किया कि जब वो खुद कन्फेस कर रहा है 300 और अगर बाकी एविडेंस उसको corroborate कर रही है, corroboration इंडिपेंडेंट, तो आप उसको सजा दे सकते। जब वो 5 साल या पॉइंट हुए तो वो उन्होंने उसको टाइम दे दिया है कि कर लें। लास्टली कि हमारा जो स्टूडेंट्स इतना बिगड़ चुका है कि हर मुल्क में एक म्यार है। सिविल जजेस जब एक एडीपीपी और सिविल जज ट्रेनिंग करता है, उसको भर्ती होता है, उसको 3 महीने पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं और सिविल जज को कहते हैं तुमने ऐसे 4 उसको यूएसबी भी देते हैं। आप मैडम सिविल जज रही हैं, उसको पंजाबी सिविल जज में कि यूएसबी देते हैं, ये रिमांड आर्डर है, ये 4 में पढ़ाता हूँ ना, उसको 3 महीने देते हैं। और आपको कल आपको एलिवेट करें, आप तो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं, को मेरे जैसे बंदे को एलिवेट कर दें और उसको बिल्कुल भी ये पता नहीं और उसकी एक दिन ट्रेनिंग नहीं है, ऐसे ही है। और वो फिर जाते ही सुबह 9 जजमेंट्स वो दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने कहा है कि ये जेल्टन रोड है, और वो सुबह सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट का कह देगा कि नहीं ये तो लक्ष्मी चौक। थैंक यू सो मच जी। इंडिया में ये थोड़ा सा बेहतर इंडिया देखें, मैं यकीन करें ये आप वाइंड अप करें और फिर closing करें। इंडिया बहुत बेटर, इंडिया में बहुत बेहतर। आप उनकी जजमेंट्स पढ़ें तो उसमें नजर आता है कि जितनी पुरानी कंसिस्टेंसी judgments है। हैं, उसको या तो वो उसकी बेसिस के ऊपर उससे एग्री करके डिसीजन देंगे, या अगर डिसएग्री करेंगे तो फिर उसका रैशनल भी देंगे, Yes. या फिर अगर नहीं कर सकते तो फिर लार्जर बेंच की लार्जर बेंच की तरफ तरफ जाएगा। जो है लॉ। वहां पर आप जजमेंट रिसेंट पढ़ें तो उसमें पूरी हिस्ट्री सारी जो है वो आपको वहां से एक जजमेंट से पता लग जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में आप डेली बेसिस पे एक कोर्ट में जाएं तो एक तरफ फैसला हो रहा है, दूसरी कोर्ट में जाएं दूसरी तरफ फैसला। और लास्टली मैं आपको एज अ लाइटर नोट बताऊं कि जज साहब एक ना एडिशनल रजिस्ट्रार कोर्ट के जो रीडर होता है ना नीचे सेशंस कोर्ट में, उसको हाई कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार कहते हैं, तो वो फोन को होता है कि असल में मेरी स्पेशलिटी है जजमेंट्स, मेरे रजिस्टर इतने, और अभी जो मतलब जून का जब 1 को आ जाना है तो मैंने 2 दिन में उसको पढ़ के अपने रजिस्टर्स पे, अभी भी मैं रजिस्टर पे तो वो एक बात कर रहे थे, मैं आपको ये बिल्कुल वो एडिशनल साहब कह रहे थे कि जेडे फलां जज साहब ने ना वो साडे कोल एलिवेट होने तो 3 दिन पहला पेश हुए। वो मुझे जारी बात है एडिशनल रजिस्ट्रार कोर्ट में रीडर को, तो उन्होंने कहा आई वुडंट मेंशन द नेम, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने कहा यकीन करो, उन्होंने कहा द क्रुक्स ऑफ द मैटर इज, अब ये खुदा की कसम मुझे एडिशनल रजिस्ट्रार साहब बता रहे हैं, उन्होंने सारी बात मैं क्या भी ये गल नूं इत्थे ही रख दे, उन्होंने जज साहब दी जजमेंट इन्नियां अच्छियां ने, और वो ये भी आपको बता दूं वो सिविल के जज हैं। हालांकि आपको पता है जो सिविल कॉर्पोरेट के वकील होते हैं या जज होते हैं, एक तो वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, एक उस थोड़े मैनर उनके अंदर जरा बेहतर होता है, नॉर्मली होता है कि वो किताबें ज्यादा पढ़ते हैं। ही इज नाउ अ लीडिंग जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और वो क्योंकि वो तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने जो 3 दिन पहले कहना दी क्रुक्स ऑफ द मैटर इज, तो 3 दिन बाद उन्होंने एलिवेशन हो गई, और दिस इज द प्रॉब्लम। और ये मैं आपको ये सिविल के जज हैं।